Hello public, we will do 12 standard revision. We will start with what? Matrices, उसमें important formulae. A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to what? Determinant of A into I. A into adjoint of A or adjoint of A into A is always what? A scalar matrix, because I is what? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and if determinant is K, this K is multiplied to what? Each and every element. So this will become how much? K 0 0 0 K 0 0 0 K. This is which matrix? Scalar matrix. But if A is a singular matrix, मतलब उसका determinant will be how much? 0. So the A into adjoint of A will become what? A null matrix or zero matrix. Very very important, determinant of adjoint of A is determinant of A raised to n minus 1, where n is what? The order of the matrix. Okay, we can find adjoint of only a square matrix. Similarly, determinant of adjoint of A is determinant of A raised to n minus 1 the whole square. N is what? The order. Adjoint of A is determinant of A raised to n minus 2 times A. Means if A is of order 2 by 2, 2 minus 2 हो जाएगा 0. Adjoint of A is equal to how much? A. How much is adjoint of AB? Adjoint of AB is adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of A dash is equal to adjoint of A the whole dash. Dash means what? Transpose. Transpose means what? Interchanging rows to columns or columns to rows. Determinant of adjoint of A and determinant of cofactor of A both are same, because what is a adjoint? Adjoint is obtained from cofactor of A by interchanging rows and columns. In a determinant, if rows are changed to columns or columns are changed to rows, the value of the determinant remains same. Adjoint of constant into a matrix is K raised to n minus 1 times adjoint of A. Very very important. N is the order of the matrix. Adjoint of A raised to n is adjoint of A whole raised to n. If A is singular matrix, then a determinant of adjoint of A is also equal to what? 0. If A is a symmetric matrix, then adjoint of A is also symmetric. Inverse of a square matrix A, if it exists, if and only if it is what? A non-singular matrix, matlab determinant should not be equal to 0, and A inverse is always unique. एक ही आंसर आपको मिलेगा. A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant of A inverse is 1 upon determinant of A. ये देखिए, A into A inverse is equal to how much? I. Determinant of A into A inverse is determinant of I. Determinant of A into determinant of A inverse, this will be equal to 1. इसको नीचे ले लिया तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा. Determinant of A inverse is 1 upon determinant of A. AB inverse is equal to B inverse A inverse. वैसे ही AB transpose is what? B transpose A transpose. ABC inverse is C inverse B inverse A inverse. KA inverse, KA का full inverse is 1 upon K times inverse. This is important. Adjoint of A का inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. A inverse transpose is A transpose का inverse. Very very important. Determinant of KA is K raised to N into determinant of A. If A is a diagonal matrix D1, D2, D3 dot 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 Dn, what is a diagonal matrix? Non-diagonal element 0. Diagonal elements are D1, D2, D3 dot 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 Dn. Then A inverse will be also a diagonal matrix 1 upon D1, 1 upon D2, 1 upon D3 dot 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 1 upon Dn. And A raised to M पूछा with, it will be diagonal of D1 raised to M, D2 raised to M, D3 raised to M dot 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 Dn raised to M. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ ए इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. ए डी को इंटरचेंज कर दिया है, डी ए हो गया. चेंज द साइन ऑफ व्हाट? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. ये क्या रहता है आपका? एडजॉइंट. इफ यू डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट यू विल गेट व्हाट? द इनवर्स. The sum of the product of the elements of any row or column of a determinant A
and cofactors of the corresponding elements of the same row or column is what? Determinant of A. ये वाला element and its cofactor, element and its cofactor, element and its cofactor, this is always equal to what? Determinant of A. एलिमेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर सेम का नहीं, अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो. ये अगर सेम रहेंगे देन वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये मैं कोफैक्टर की बात कर रहा है. इंस्टेड ऑफ कोफैक्टर अगर एडजॉइंट है, एडजॉइंट का क्या आएगा? फर्स्ट रो ऑफ अ मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ अ एडजॉइंट. This is A, this is adjoint of A, this is R1, this is C1. Corresponding elements अगर आपने multiply किया तो इसका answer is what? Determinant of A. First row, first column, or second row, second column, or third row, third column. It will be what? Determinant of A. क्या बड़बड़ कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर A एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग कैसा फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ, इसमें ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं, ये दोनों का साइन चेंज करते हैं. करेक्ट? अभी आप देखिए प्लीज कि ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम अगर आपने मल्टीप्लाई किया द वैल्यू विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 1 इंटू 4 4, 4 माइनस 6, इट विल बी हाउ मच? -2. डिटर्मिनेंट इसका कितना है? -2. अगर आपने सेकेंड रो लिया और सेकेंड कॉलम लिया, देखिए -6 प्लस 4 कितना है? -2. एडजॉइंट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम किया और थर्ड रो रहेगा तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम किया तो आपको क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर. यहां पे देखिए एलिमेंट और उसका ही कोफैक्टर, एलिमेंट उसका ही कोफैक्टर क्या मिलता है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट का फर्स्ट रो all the elements of first row with all the elements of first column, if you multiply you will get what? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. लेकिन अगर आपने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है? देखिए 0. झेप रहा है क्या? अलग अलग रहेगा तो इट इज इक्वल टू 0. एडजॉइंट में मैं रो और कॉलम की बात कर रहा हूं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया यू विल गेट डिटर्मिनेंट. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम किया यू विल गेट व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट रो अगर आपने सेकेंड कॉलम के साथ किया तो यू आंसर विल बी व्हाट? 0. ओके, दिस आर एलिमेंट्स शेम कोफैक्टर, एलिमेंट एलिमेंट शेम कोफैक्टर की बात कर रहा हूं. वो क्या आता है? डिटर्मिनेंट. ये दोनों अलग अलग रह गए तो इसका वैल्यू कितना आता है? 0. नेक्स्ट, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix then trace of A is denoted by TR of A and is equal to what? Sum of the diagonal elements. एकदम चिंदी है, you must know only the definition. What is trace of A? 1 plus 4, this is equal to how much? 5. just add what? the diagonal elements. आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा trace of a matrix. 4 plus 1, this is equal to 5. What is a symmetric matrix? If A is a square matrix such that A is equal to A dash or Aij is equal to Aji, it is called what? A symmetric matrix. A plus A dash, a matrix and its transpose, unka addition is always what? A symmetric matrix. What is a skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix is what? If A is a square matrix such that all the diagonal elements are 0 and A equal to minus A dash or Aij is equal to minus Aj high. What will be trace of a skew symmetric matrix? 0, because all the diagonal elements are what? 0. So trace of a matrix which is skew symmetric will always be equal to 0. A matrix and its transpose subtract किया तो उसका value is always what? A skew symmetric matrix. Determinant of a skew symmetric matrix of odd order is always 0 and of even order is always a perfect square. If A is symmetric matrix then A raised to n is what? A symmetric matrix. If A is a skew symmetric matrix then A raised to n is symmetric when n is what? Even.
and a raised to n is skew symmetric when n is what? Odd. A raised to n is symmetric if n is even. A raised to n is skew symmetric when n is what? Odd. Every square matrix can be expressed as what? Sum of symmetric and skew symmetric matrix. A is a plus a dash upon 2 plus a माइनस ए डैश अपॉन 2. अगर इसको मैंने b कंसिडर किया, इसको मैंने c कंसिडर किया, तो b इज a प्लस ए डैश अपॉन 2 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड c इज a माइनस ए डैश अपॉन 2 इज कॉल्ड व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. झेपरा है क्या? एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको बोलेगे यू फाइंड एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड फाइंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब आपको क्या फाइंड करना है? a प्लस ए डैश अपॉन 2. स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या फाइंड करना है? a माइनस a dash upon 2. Solution of linear equations: a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Solution मतलब find the values of x, y and z. We can write this equation ax is equal to b in matrix form, which is equal to a inverse b. इधर दोनों को a inverse से pre multiply कर दिया तो x will be how much? A inverse b. If determinant is not equal to 0, equations are consistent with unique solution. A क्या रहता है? A is what? Coefficient matrix. A1, B1, C1, A2, B2, C2 and A3, B3, C3. इसका आपको क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट. इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन. इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, आपको फाइंड क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ A इंटू B. अगर 0 रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो नो सॉल्यूशन. अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B. नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो नो सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एंड इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं फाइंड करना है, इट विल हैव व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन. आगे बढ़ते हैं. सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. अभी होमोजेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब भी सब टर्म्स के पावर सेम रहते हैं, या x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, या कांस्टेंट टर्म है. मतलब अगर ये तीनों कांस्टेंट टर्म 0 रहेगा तो ये सबके पावर्स क्या हो गए? इक्वल. जब भी सबके पावर्स इक्वल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस equations. So the equation ax equal to b is said to be homogeneous if matrix B is what? A zero matrix. That is ax is equal to how much? 0. If determinant of A is not equal to 0, then there is only one solution. All the values of unknown is equal to how much? 0. Determinant of A is not equal to 0, sub values of unknowns will be equal to what? 0. It will have unique solution and it is called what? Trivial solution. And if determinant of A is equal to 0, it has infinite solution which is called what? Non-trivial solution. बड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं? If all unknowns or if any one of the unknowns is not 0, अगर ऐसा लिखा है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. ये किसके लिए है? सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए. होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए क्या आते हैं आपको? ट्राइवल सॉल्यूशन एंड non-trivial solution. What is a trivial solution? All the values of unknowns, each and every value of the unknown is equal to what? 0. ये केस में क्या आ जाएगा? x is equal to y is equal to z is equal to what? 0. If all the values of unknowns is 0, determinant is what? Not equal to 0. It is called what? Trivial solution. इसमें से कोई भी एक अगर नॉट 0 रहेगा मतलब इट विल हैव infinite solution. In that case determinant of A is equal to 0. It is called what? Non-trivial solutions. So, इतने उसमें आपको क्या थे? पॉइंट्स थे. अभी चिंदी चिंदी सम्स करेंगे. इफ A is 1 2 3 4, फाइंड A इनवर्स. A इनवर्स कैसा फाइंड करते हैं? ये दोनों को इंटरचेंज करो, ये दोनों का साइन चेंज करो एंड डिवाइड बाय व्हाट? डिटर्मिनेंट. कितना हो गया? -2. ओके. नाउ A इनवर्स दिया है, A फाइंड करना है. सेम थिंग, कोई टेंशन नहीं. ये दोनों को इंटरचेंज करो, ये दोनों का साइन चेंज करो और 4 माइनस 6, दिस इज हाउ मच? -1/2. ओके, -1/2.
अभी इसमें देखिए ए इनवर्स दिया है, तो आपका ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -½ टू हाफ एंड -1। तो आपका ए कितना हो जाएगा, ए विल बी, ये दोनों को मैंने इंटरचेंज किया और ये दोनों का मैंने क्या चेंज किया, साइन चेंज किया, एंड डिवाइड बाय इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ½ - 1 मतलब -½ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 इंटू -1 -2 -½ करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, शाइनिंग मार सकते, ये हो जाएगा 2411। ठीक है, 2411, 2411। ठीक है, ए इनवर्स। नाउ बड़े वाले का ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। नाउ ये मैं एक मेथड बताता हूं आपको, जो आपको पसंद है आप लोग कर सकते हैं। एक मेथड है, जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे ABCD, ओके, प्रॉब्लम एंड ऑप्शन मल्टीप्लाई, इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, I। सेकेंड मेथड देखिए, यही जो है वो आप लिखिए 221 102 212 221 102 212, और ये फर्स्ट रो कॉलम यहाँ लिख दीजिए 212 201, और यहाँ पे लास्ट रो 22122। क्या किया है बुड्ढे ने क्या किया है, ये जो दो कॉलम से ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रिपीट कर दिया यहाँ पे, ओके, और ये जो रो है ये फर्स्ट रो को रिपीट कर दिया, ओके। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, पहला रो और पहला कॉलम को बंद कर देता हूँ, ओके। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे और एक आ जाएगा 10210, ये सेकंड वाला भी। देखिए बॉस, ये जो है 212201, यहाँ लिख दिया 212201, और ये 2212210210 इधर लिख दिया 2212210210। ठीक है, ये फर्स्ट बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। अभी अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना आ रहा है, ये आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। स्टार्टिंग को तकलीफ होगी, बाद में मजा आएगा। देखिए आप, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इंटू दिस, 0 इंटू 2 0 0 -2 कितना आ गया, -2। नीचे 1 -4 -3, नीचे जाने का हॉरिजॉन्टल लिखने का, 4 -0 4 आ जाएगा यहां से, 4 -2 2 4 -2 2 1 -4 -3, ओके। अभी ये वाला 1 -0 1 4 -2 2 0 -2 -2 -2 -3 4 2 2 -3 1 2 -2, ये मिल गया मुझे एडजॉइंट, ओके। देखिए कैसा फाइंड किया है, और एक बार लिखता हूं मैं, देखो क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है लिख दो, 2 2 1 1 0 2 2 1 2, ये दो कॉलम्स वापिस यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। पहला क्या है 2 1 2 2 0 1, और नीचे क्या आ जाएंगे, दो रोज 2 2 1 2 2 1 0 2 1 2, ये कैंसिल कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ जा रहा है कॉलम वाइज, लिख रहा हूँ रो वाइज, जा रहा हूँ नीचे, लिख रहा हूँ रो वाइज। झेपा क्या थोड़ा थोड़ा। और ए इनवर्स क्या रहता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ही बोल बच्चन किया था, देखिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ कैसा मिलेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -4 + 4 0 0 + 1 1, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 1। अरे भैया झेपा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट रो, ओके, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू -3 -3 + 0 + 4, आंसर कितना है 1, या थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 -3 -4 1,
क्या बोल रहा है बुड्ढा? अरे भैया जी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपका ए इनवर्स कितना आ गया? सेम सेम, ए इनवर्स विल बी व्हाट, ए इनवर्स विल बी -2 -3 4 2 2 -3 1 2 -2। नहीं समझा? वेरी गुड। और एक सम लेते हैं, देखिए प्लीज क्या लिखने का है, देखो। 1 2 3 1 1 5 2 4 7 1 1 2 1 1 5 1 1। ये मैंने काट दिया, ठीक है। अभी मेरा एडजॉइंट ऑफ ए कितना आने वाला है, देखिए। 7 -20 13, 12 -14 -2 12, बराबर है ना? 4 3 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 10 -3, 10 -3 कितना आ गया? 10 -3 हो गया 7। चेप रहा है? ये कितना है? 7 -20 आ जाएगा -13। गुस्सा मत करो। 10 -7, 10 -7 कितना आ जाएगा? 3। 7 -6 कितना आ जाएगा? 1। 3 -5 कितना आ जाएगा? -2। झेप रहा है क्या? इधर जा रहा हूं कॉलम वाइज, लिख रहा हूं रो वाइज। 4 -2 2, 4 -4 0, 1 -2 -1। झेपा क्या भैया? इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए। 7 -20 -13, 12 -14 -2, इधर जा रहा हूं कॉलम वाइज, इधर लिख रहा हूं रो वाइज। 10 -7 3, 7 -6 1, 3 -5 -2, 4 -2 2, 4 -4 0, 1 -2 -1। अभी आपका ए इनवर्स कैसा फाइंड करते हैं? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? -13, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 मतलब -1। तो आपका ए इनवर्स कितना है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब आपका ए इनवर्स कितना हो जाएगा? 13 2 -7 -3 -1 2 एंड -2 0 1। टिंग टिंग टी टिंग। समझा क्या? थोड़ा थोड़ा क्या किया है मैंने? यही मैट्रिक्स लिखना है, यही मैट्रिक्स लिखना है। इसके आगे ये दोनों कॉलम्स लिखने हैं, 1 1 2 2 1 4, और ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो इधर नीचे लिखना है। पहला और लास्ट को कट करना है। चलिए और एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं अभी ये टाइप का। अपन क्या करना है आपको, देखिए। 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, 1 -1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 -1 1 2 -1, सॉरी 1। ये कट कर दो, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या मिलने वाला है, देखिए। 2 इंटू 2 4, 4 -3 कितना हो गया? 1। करेक्ट, वो कट किया है पागल, ये कट किया है, ये वाला नहीं लेना है। छोटी सी गलती आपको किधर लेके जाएगी? ये कितना है? 1 2 3। करेक्ट, क्या ऊपर वाला था? 1 2 3 सब गड़बड़ कर दिया अभी तूने। एक मिनट एक मिनट, वापस लिखते हैं सब रब करके, कोई टेंशन नहीं, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए प्लीज, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, 1 -1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 -1 1 2 -1 1। अबे भैया समझा क्या? क्या किया है? ये जो दो कॉलम से यहाँ पे रिपीट किए हैं, और ये जो दो रोज है वो यहाँ पे मैंने रिपीट किए हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दिया।
अभी मेरे को क्या मिलेगा देखिए प्लीज। ओके, क्या मिलेगा आपको मैट्रिक्स? 4 - 4 0, 6 - 8 -2, 4 - 3। झेप रहा है क्या? इधर जा रहा हूं कॉलम वाइज, लिख रहा हूं रो वाइज। 2 + 4 6, 4 - 3 1, -3 - 2 -5, -2 - 1 -3, 2 - 2 is 0, इधर देखना भाई, and 1 + 2 will become what? 3। झेपा क्या? झेपा क्या? And how to find A inverse? It is 1 upon determinant of A into 0 - 2 1 6 1 -5 -3 0 3। ओके, कैसा डिटर्मिनेंट फाइंड करते भैया जी? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 0 0, 2 × 6 12, 3 × -3 -9, 12 - 9 will become 3। टिंग टिंग टी टिंग, आपका आंसर 1/3 × 0 - 2 1, 6 1 -5 -3 0 3। झेपा क्या? कोई भी रो और कोई भी कॉलम, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिस्पेक्टिव। अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, लेकिन अगर अपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको मिलेगा जीरो। याद रखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ किया तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ किया तो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट। क्या बोल रहे हैं बुड्ढा? देखो ना भैया जी, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का किया है। अगर आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो विथ व्हाट? सेकंड कॉलम, तो आंसर जीरो मिलेगा। देखिए, फर्स्ट रो 1 × -2 -2, 2 × 1 2, 3 × 0 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? जीरो। करेक्ट। अगर आप सेम रो और सेम कॉलम के साथ करते हैं, सेम रो R2 C2 करते हैं, देखो R2 और C2, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? R2 -1 × -2 2 + 1 + 0, ये आपको क्या मिल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ऐसा भी पूछ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में। याद रखिए कि फर्स्ट रो ऑफ एन matrix and first column of a adjoint, if you multiply you will get what? Determinant of a matrix. But if you are multiplying first row with second column, okay, if you are multiplying first row with second column or first row with third column, answer will be what? Zero. First row with first column, first row with second column 0, first row with third column 0, first row with first column, it will be determinant of the given matrix। झेप रहा है क्या? Second row with first column 0, second row with second column, it will be determinant of the matrix, second row with third column, it will be 0, थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम, यू विल गेट व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चेक कीजिए, 1 × 1 कितना हो गया? 1, 2 × -5 कितना हो गया? -10, और ये कितना है? 1, ये हो गया -9, 4 3 12, 12 - 9, अगेन आंसर कितना आ गया? 3। टिंग टिंग टिंग। समझा क्या मेथड? ये क्या किया है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके ये दो कॉलम आपको यहाँ पे लिखने हैं, बाद में फर्स्ट रो और सेकंड रो नीचे लिखने हैं आपको। बाद में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दीजिए, दिस माइनस दिस फर्स्ट एलिमेंट, दिस माइनस दिस। यहां मैं कॉलम वाइज जा रहा हूं, लिख रहा हूं रो वाइज। याद रखिए, कॉलम वाइज जा रहा हूं, लिख रहा हूं क्या? रो वाइज। दिस इंटू दिस, 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 दिस इंटू दिस। दिस इज कॉलम वाइज जा रहा हूं, लिख रहा हूं क्या है? रो वाइज। और यहां भी कॉलम वाइज जा रहा हूं और लिख रहा हूं क्या? रो वाइज। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने आ जाएगा। कुछ भी नहीं समझ रहा है, ऑप्शन और प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना आना चाहिए? ए इनवर्स। आंसर कितना आना चाहिए? ए इनवर्स। अभी यहाँ पे देखिए, next problem, the element in the second row and third column in the adjoint of the matrix, the element in adjoint of a matrix, suppose A ले लिया, in adjoint of the matrix, the element which is what? Where? In second row and third column. So in cofactor it will be where? In third row and second column। करेक्ट ना? उल्टा हो जाता है, बिकॉज एडजॉइंट क्या रहता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एंड व्हाट विल बी कोफैक्टर ऑफ 3 2
it will become what? Minus 1 raised to 3 plus 2 into minor of 3. माइनस वन रेज टू ऑड कितना आ जाएगा? माइनस वन, एंड माइनर ऑफ थ्री टू, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ये बंद कर दिया, इसका मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 7 इंटू फाइव विल बिकम हाउ मच? 35, और 18 इंटू टू विद द नेगेटिव साइन दिस विल बिकम 36। तो आपको कितना मिल जाएगा? दिस विल बिकम 35 प्लस 36। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? -71। झेपा क्या? द एलिमेंट विच इज इन एडजॉइंट, द एलिमेंट विच इज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो इन कोफैक्टर इट विल बी वेयर? इट विल बी इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम बंद कर दिया। 7 5 are 35, 35 plus 36 will be what? 71, minus raised to odd number is minus, so answer will be what? -71. This is in adjoint. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है भैया। नाउ इनवर्स क्या रहता है आपका? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन एडजॉइंट ऑफ ए द एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, so in cofactor it will be what? In third row and first column. So cofactor of A31 will be how much? Cofactor of A31, this will be how much? C31, this will be minus 1 raised to 3 plus 1 into minor of 31. माइनर ऑफ 3 1 मतलब ये एलिमेंट, इसको मैंने बंद कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? 7, बिकॉज ये रेस टू कितना है? E1, तो नो चेंज। ये आपको क्या मिल गया है? एडजॉइंट। आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। 1 इंटू 1 माइनस 0 विल बी 1, सो डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 1। देयरफॉर इन इनवर्स the element which in first row and third column will be how much? 7. The element which is in first row and third column will be how much? 7. चलिए और चिंदी प्रॉब्लम्स करते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 into ए बी।
Now determinant of Ka, this is important formula, this is K raised to n into determinant of A, and determinant of AB is how much? Determinant of A into determinant of B. तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ए बी कितना आ जाएगा? 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. 2 क्यूब कितना हो गया? 8 माइनस 1 इंटू 3, ये कितना हो गया? -24. टिंग टिंग टी टिंग. ओके, फाइंड ए एंड सी इफ ए इज गिवन, ए इनवर्स इज गिवन. सबको पता है ए इंटू ए इनवर्स कितना है? आई. ठीक है ना? तो आपका ए कितना है? ए कितना है भैया जी? 0 1 2 1 2 3 3 ए 1. ए इनवर्स है हाफ इंटू 1 minus 1 1 minus 8 6 to C and 5 minus 3 1. और I आपको मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. कुछ भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ शाइनिंग मारा. आपको ए फाइंड करना है तो आप ये रो ले लीजिए और ये कॉलम ले लीजिए. कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं. अगर आपने ये लिया तो ये आपका क्या आएगा? एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या रहने वाला है? 0. अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलता है? देखिए 3 माइनस 8a प्लस 5. 3 माइनस 8a प्लस 5 इज इक्वल टू 0. मतलब a मिल गया 1. ए चिंदी. ओके, सिमिलरली आपको सी फाइंड करना है तो आप फर्स्ट रो ले लीजिए और कौन सा ले लीजिए? थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. आंसर कितना है? 0. 0 इंटू 1 0 प्लस 2c प्लस 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0. तो c कितना मिल गया? -1. टिंग टिंग टी टिंग. सिंपल प्रॉब्लम्स ही आएंगे. आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखिए. क्या करना है? ये सिर्फ मैंने आपको शायद नया सिखाया है. हाउ टू फाइंड व्हाट? इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. हाउ टू फाइंड व्हाट? इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स दिया है, और एक बार 1 2 3 1 1 5 2 4 7, ये रिपीट करना है. 1 1 2 2 1 4. नीचे आ जाएगा 1 2 3 1 2 और 1 1 5 1 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट कर दीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए. कॉलम वाइज जाना है, रो वाइज लिखना है. ये आपको मिल जाता है क्या? एडजॉइंट. और बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट हो जाएगा इसका कैसा फाइंड करना है. एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट यू विल गेट व्हाट? ए इनवर्स. टिंग टिंग टी टिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.